Hello, welcome students of class 11 English subject. In this lesson, we are going to revise the multiple choice type questions of your textbook lesson. First is textbook lesson of your book Hornbill. Lesson name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Question number 1. Why did the narrator and his family set sail from Plymouth, England? Option A, B, C, D. Options are on your screen. You can read the options. The correct answer is option D. To celebrate the bicentenary of Captain James Cook's final voyage. Option D. Next question. In which direction did they move from Cape Town? Options are on your screen. A, B, C, D. From Cape Town to Australia. This is from west to west. Sorry, correct option is to east. Cape Town is in west. Australia is in east. Option B is correct. Next question. The meaning of take on is. Options are on your screen. A, B, C, D. It means to finish one's task. Option D is the correct. Next question. Where did they take the two crewmen from? Two crewmen, लैरी विजिल एंड सिब हेजलर, उन्होंने कहाँ से अपने साथ लिए थे? ऑप्शन है इसका करेक्ट डी, केप टाउन. नेक्स्ट. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. What does it speak of the narrator and his family? एट्रोशियस वेदर के बावजूद हमने वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री. तो नरेटर एंड हिज फैमिली के बारे में इससे क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, दे वर केयरलेस. बी, दे वर अनअवेयर ऑफ द पावर्स ऑफ द गेल्स एंड वेव्स. दे वांटेड टू मेक एवरीथिंग लुक नॉर्मल टू देयर किड्स. Rough weather could not dampen their spirit. Correct option is D. Rough weather could not dampen their spirit. Next question. When do the sailors make use of a storm jib? Sailors storm jib का यूज कब करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए स्क्रीन पर 4. When the sea is calm, जब समुद्र शांत होता है. When the weather is bad, जब वेदर बैड खराब होता है. टू एंकर द शिप और टू गेन स्पीड. करेक्ट ऑप्शन इज एज द नेम सजेस्ट स्टॉर्म जिब व्हेन द वेदर इज बैड. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच पार्ट ऑफ ए बोट इज कॉल्ड स्टैन? बोट और शिप के किस पार्ट को स्टैन बोलते हैं? ऑप्शन 4 है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द बैक एंड. स्टैन इज ए पार्ट ऑफ द कंट्रोल, नेम ऑफ द कंट्रोल विच इज यूज्ड फॉर गिविंग द डायरेक्शनल कंट्रोल टू ए शिप लेफ्ट and right, and this is situated at the back end of the ship.
This was question number 7. Now question number 8. Why didn't the narrator stop to examine Sue's bump? Narrator कैप्टन गॉर्डन कुक अपनी बेटी डॉटर सू का बम्प मीन्स इंजरी टू द हेड को देखने के लिए क्यों नहीं रुका? ऑप्शन करेक्ट है, ही वाज इन ए हरी टू रिपेयर द बोट. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. He was in a hurry to repair the ship. उनको पहले शिप को रिपेयर करने की जल्दी थी. ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हैंडपंप्स स्टॉप्ड फंक्शनिंग बिकॉज. हैंडपंप ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि. ऑप्शन ए बी सी डी. हैंडपंप्स they were blocked by the debris. Option D is correct. Blocked by the debris. Next question. Number 10. Mayday calls are calls made on 1st May. Distress calls. Call made from a sailing vessel. Calls made from a foreign hand. This is an idiom of English language. इट मीन्स डिस्ट्रेस कॉल्स. मुसीबत में की गई कॉल मीन्स संदेश भेजना. ए मैसेज सेंट इन एमरजेंसी. दिस इज कॉल्ड मेडे कॉल. क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट. वाई वर द आइलैंड्स कॉल्ड पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. वो जो 2 आइलैंड्स उन्होंने मैप पे नोट किए थे कैप्टन गॉर्डन कुक ने, 2 आइलैंड्स, उनको पिन प्रिक्स इन वास्ट ओशन, विशाल महासागर में सुई के बराबर क्यों बोला गया है? ऑप्शन. दे वर टू स्मॉल इन साइज टू द वास्ट ओशन. यही ऑप्शन करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन इज A. Next question, number 12. How long did they pump to keep the water level under control? वाटर लेवल को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने कितने लंबे समय तक पंप किया था? ऑप्शन ए बी सी डी. सो लेट्स सी इट्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Answer is at one place it is mentioned. Now it has been 36 hours. C is correct option. Next question number 13. Which part of the boat was smashed down to the keel? बोट का कौन सा पार्ट कील मीन्स बॉटम ऑफ द शिप तक टूट गया था? तो आपको पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड इनमें से ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो जब आप लेसन पढ़ेंगे तो उसमें पोर्ट हल ये लिखा मिलेगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. Why wasn't he convinced of his final decision to steer the boat to a course of 180 degrees? कैप्टन गॉर्डन कुक क्यों इतना निश्चित नहीं हुआ था कि उसने अपने शिप को 180 डिग्रीज तक स्टीर मतलब टर्न कर दिया था? ऑप्शन है ए. टू टायर्ड टू टेक गुड डिसीजंस. Poor knowledge about these parts of the seas. Lost the equipment required to locate the route. He was disappointed. So इसका correct option है because of the damage in ship he did not have the correct instruments to measure the correct angle
and the correct location of his ship. So option C, had lost the equipment required to locate the route. Next lesson for revision of Hornbill lesson. Lesson number 5, the ailing planet and the role of the green movement. This lesson is written by Nani Palkhiwala. So let's see its MCQ, multiple choice type questions. Question 1. What is meant by the sustainable development? So option B is correct. It cares for future generation. जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज तरीके जो फ्यूचर की जनरेशन्स की ज़रूरतों को भी ख्याल रखे, इसका सही ऑप्शन होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. खाना बनाने के बर्तन में जो अंदर सामान रखा होता है कुकिंग के लिए, उसकी कॉस्ट कम है. एंड अंडर द पॉट, और उसको कुकिंग करने के लिए जो फ्यूल ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, गैस, लकड़ी, कोयला आदि, उसकी कीमत ज़्यादा है. इस स्टेटमेंट का मीनिंग मतलब क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. सो firewood is dearer than food. Option C is correct. Dearer means costly. वर्ड पे ध्यान देना, dearer, कि खाना बनाने में जो लकड़ी यूज होती है वो काफ़ी महंगी हो गई है, खाने की कीमत से भी ज़्यादा. नेक्स्ट. द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर पॉइंटेड आउट बाय. किसने पहली बार 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ के बारे में बताया था? इसका ऑप्शन है करेक्ट डी, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन. क्वेश्चन नंबर 3. नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज. ये कहना, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए 4, और इसका सही ऑप्शन है बी, मार्गरेट थैचर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी. उन्होंने ये कहा था, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिशरीज कोलैप्स बिकॉज. फिशरीज बहुत ज़्यादा समाप्त हो गई है क्योंकि फिशेज डाई इन लार्जर नंबर्स, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इज नॉट प्रॉपर, ऑफ ओवर फिशिंग ड्यू टू हाई डिमांड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो, सी, ओवर फिशिंग. हमारी रिवर्स में और सी, समुद्रों में, पोन्ड्स एंड लेक्स, झीलों में, तालाबों में मछलियां मिलनी क्यों बंद हो गई है? करेक्ट आंसर इज ऑफ ओवर फिशिंग ड्यू टू हाई डिमांड. ज़्यादा डिमांड होने की वजह से ओवर फिशिंग की जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. द ऑथर रेफर्स टू कोपरनिकस इन हिज आर्टिकल. लेखक ने अपने इस लेख में, एलिंग प्लैनेट वाले में, निकोलस कोपरनिकस के बारे में क्या बताया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. तो इसका ऑप्शन है करेक्ट सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. टू से दैट ग्रीन मूवमेंट रिवोल्यूशनाइज्ड human
outlook as much as the theory of Copernicus. ऑथर नानीपाल का बता रहा है कि ग्रीन मूवमेंट ने भी ह्यूमन आउटलुक, मनुष्य के विचारों को ऐसे ही रिवोल्यूशनलाइज्ड कर दिया था एज मच जितना कि थ्योरी ऑफ कोपरनिकस ने, कोपरनिकस के सिद्धांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सॉइल इज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर डंग बिकॉज, जो मिट्टी है अब प्राकृतिक खाद, गोबर की खाद से डिप्राइव, मतलब कि गोबर की खाद नहीं मिलती अब खेतों को, बिकॉज क्योंकि, ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि डंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल, क्योंकि गोबर को खाना बनाने के लिए फ्यूल, ईंधन के रूप में जला दिया जाता है, तो हमारे फील्ड्स, खेतों को खाद के लिए बचती नहीं है। Next lesson for revision is The Adventure, taken again from Hornbill. Author of this lesson is Professor Jayant Narlekar. Multiple type questions. Question number 1. Yes, the reply was factually correct. On the basis of this statement, pick up the correct option. Yes, आंसर तो फैक्चुअली, फैक्ट्स के आधार पर बिल्कुल सही है। इस स्टेटमेंट के आधार पर करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। ए, गंगाधर पंत वाज गोइंग टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। बी, गंगाधर पंत हैड बीन टू बॉम्बे बिफोर। सी, गंगाधर पंत वाज ट्रैवलिंग टू ए डिफरेंट बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। Gangadhar Pant wanted to hide the details of his journey from Khan Sahib. So, out of these 4 options, कौन कौन सी ठीक है? Gangadhar Pant had been to Bombay before and Gangadhar Pant was traveling to a different Bombay for the first time. भाई गंगाधर पंत बॉम्बे पहले भी जा चुके थे और इस बार गंगाधर पंत ने गायतुंडे, सॉरी द करेक्ट नेम इज गंगाधर गायतुंडे ने इस बार जो बॉम्बे देखा था वो नए तरीके का था। तो बी एंड सी जो लिखते हैं वो ऑप्शन करेक्ट होगा। सो बी एंड सी तो 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Peshwas, in spite of their supremacy, did not drive out the East India Company because, पेशवा ने अपनी सुपरमेसी, सुप्रीम शासक होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से क्यों नहीं खदेड़ के बाहर किया? ऑप्शन, दे वांटेड टू अवॉइड फर्दर कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन, उनको और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए था इस क्षेत्र में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एड एंड एक्सपर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट वुड मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। यही बुक में लिखा है कि अंडर वन अंडरस्टैंडिंग पेशवाज मराठास वो ईस्ट इंडिया कंपनी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेते रहना चाहते थे, नई हेल्प साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसलिए उन्होंने उनको लोकल थोड़े से एरिया में शासन करने दिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डिफरेंट इंडिया गंगाधर पंत हैड सीन? गंगाधर पंत जो बॉम्बे में देख चुका था वो इनमें से, ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट इंडिया का पार्ट नहीं था? ए, इंडिया वाज नॉट रूल्ड बाय द ब्रिटिश। बी, अलाउड द ब्रिटिश टू स्टे इन बॉम्बे फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स।
Marathas were routed by Abdali in the Battle of Panipat, and the Marathas' influence weakened. The Shanshah of Delhi is the ceremonial head of the state of India. तो इन ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट इंडिया का जो गंगाधर पंत ने मुंबई में देखा था उससे अलग नहीं था? सो ऑप्शंस सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, सी ऑप्शन इज मराठास वर राउटेड बाय अब्दाली. जो नॉन हिस्ट्री है, जो इतिहास हम जानते हैं कि मराठाओं की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार हो गई थी और फिर उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी. ये प्रोफेसर गायतुंडे ने इस बार मुंबई में नहीं देखा, उसका उल्टा सब कुछ देखा. नेक्स्ट, sometimes buried in the graphic but doctored accounts. Pick the option in which the meaning of doctored is not the same as it is in the passage. कभी कभी buried in the graphic, कभी कभी वर्णन करते समय छिप जाते हैं, बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, लेकिन वर्णन से के साथ छेड़छाड़, डॉक्टर्ड में छेड़छाड़ करना, डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेज कागज के साथ. पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ डॉक्टर्ड इज नॉट द सेम एज इट इज इन द पैसेज. जो डॉक्टर्ड का अर्थ इस पैसेज में है उससे अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चूज कीजिए. ऑप्शन अक्यूज्ड ऑफ प्रोवाइडिंग डॉक्टर्ड एविडेंस, डिड मोर देन प्रैक्टिस मेडिसिन, he doctored people. C, he played cricket well on doctored pitches. D, he doctored my species to suit the illiterate villagers. D ऑप्शन कि उसने मेरे डॉक्यूमेंट के साथ जानबूझ के छेड़छाड़ कर दी. ये पैसेज में कहीं भी इस मीनिंग के साथ इस वर्ड को यूज डॉक्टर्ड को नहीं किया गया है. 4 इज द ऑप्शन. D is the correct option. Next, facts. What are the facts? I am dying to know. The expression indicated what Professor Gaitunde was feeling. Pick the option that correctly states these feelings. सच्चाई, कौन सी सच्चाई? मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ. आई एम डाइंग टू नो, ये जो एक्सप्रेशन है प्रोफेसर गायतुंडे ने जो बोला, तो सबसे अच्छा जो प्रोफेसर गायतुंडे ने क्यों बोला, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है कि आई एम डाइंग टू नो द फैक्ट? ए टेरर, बी सरप्राइज, सी क्यूरियोसिटी, डी डिस्प्लेजर, ई अप्रूवल. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सरप्राइज एंड क्यूरियोसिटी. वो आश्चर्यचकित भी था और क्यूरियोसिटी, उत्सुक भी था जानने के लिए कि ऐसा उसके साथ कैसे हुआ. तो बी एंड सी जिसमें कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. सो दिस इज बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी. नेक्स्ट, like planets around the sun, what is the topic or tenor of the comparison here? जैसे कि सूरज के चारों तरफ उपग्रह, टॉपिक और टेनोर ऑफ द कंपैरिजन, यहाँ पर किस चीज की तुलना की गई है? सौरमंडल का उदाहरण देके, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ के ग्रह. तो क्वांटम एंड कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज के एग्जाम्पल को समझाने के लिए राजेश देशपांडे ने सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया था. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट is swiftly moved towards the chair, the image of magnet is used to describe.
जैसे मैग्नेट एक आयरन के पीस को अपनी तरफ खींचता है, प्रोफेसर गंगाधर देश गायतुंडे भी वैसे ही स्टेज पर रखी चेयर की तरफ खींचा चला गया। द इमेज ऑफ मैग्नेट। तो जो मैग्नेट का उदाहरण है वो किस चीज को बताने के लिए किया गया है? सो द मैग्नेट का उदाहरण दिया गया है द चेयर के लिए, जो वहाँ पर चीफ गेस्ट के लिए चेयर स्टेज पर खाली पड़ी हुई थी। वो जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही वो चेयर गंगाधर गायतुंडे को अपनी तरफ खींच रही थी, वो आकर्षित हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो B is correct option of the question number 7. Now next question number 8. But I cannot make such an assertion for the electron. Such an assertion. लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना assertion निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। Such an assertion किस चीज को बताती है? So a movement in a precise path towards a specific target, unpredictable movement with no definite destination. This is the correct option B. कि एक जब किसी चीज की मूवमेंट का और उसके निश्चित डेस्टिनेशन के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, जब वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसकी पहले से ही कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सभी 7-8 MCQ के आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो अभी अभी मैंने आपको बताए वो यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट लेसन फॉर रिवीजन ऑफ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस इज डिस्कवरिंग टट। द सागा कंटिन्यूज। This lesson is taken from Hornbill. Its author is A.R. William. A.R. William का लिखा हुआ ये लेसन है, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। MCQ क्वेश्चन नंबर 1. The mummy was bad in condition because options: it was very old, thieves had messed up with it to steal the gold, Howard Carter had severed the head and limbs, it had been ruined by natural disaster. So the correct answer is C. Howard Carter, British biologist, who discovered the mummified body of Pharaoh Tutankhamun. To remove his body from the coffin, he had to use hammer and chisel. So during this process, Howard Carter severed the head and limbs. So C is the correct answer. Next, what was the manner of Tut's death? Tut's की डेथ किस तरीके से हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है अननोन, अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अमेनहॉटेप IV शॉक्ड द कंट्री बाय। अमेनहॉटेप IV ने पूरे देश को शॉक कर दिया था अपने किस एक्शन से? ऑप्शंस है अटैकिंग द नेबरिंग कंट्री, अटैकिंग गॉड अमुन। यही करेक्ट ऑप्शन है, अटैकिंग गॉड अमुन। गॉड अमुन मून गॉड के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके एंड अटेन गॉड और सन गॉड की वर्शिप स्टार्ट करके। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन. In 1968, an X-ray of Tut's mummy revealed that टूटनखामन की मम्मी का जो एक्सरे किया था उससे पता चला
Option A, B, C, D. So, correct option is A. That some parts, bones of Tut's body were missing. टक्स की बॉडी के कुछ पार्ट्स एंड चेस्ट रिब मिसिंग थी। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीटी मशीन स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ। सीटी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, सीटी स्कैन मशीन, किस कारण से? फॉर व्हाट रीजंस? ऑप्शन सैंड इन कूलर फैन, Pharaoh's curse, cold weather, the weight of the mummy. So A is the correct option. Sand in cooler machine. Because of the dust storm, cooler fans were blocked by the desert storm sand. So A is the correct option. Sand in a cooler fan. और आज के इस वीडियो लेसन में MCQ हॉर्नबिल आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन्स, ये लास्ट लेसन है, सिल्क रोड। इट्स ऑथर इज निक मिडलटन। दिस लेसन इज ए ट्रैवल लॉग। सो लेट्स सी द MCQ ऑफ दिस लेसन 2। क्वेश्चन नंबर 1, what problems were the travelers likely to face as they chose to go southwest towards Mount Kailash? ट्रैवलर्स जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टुवार्ड्स माउंट कैलाश जाने वाले थे, वो क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले थे, कर सकते थे? ऑप्शंस A, B, C, D. They might face rough weather. The trail might be covered in a snow. So correct option is, as per details of the lesson, is B. The trail might be covered in a snow. रास्ता आगे स्नो से ढका हुआ हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टिक द सेंटेंस इन विच द फ्रेज en masse has been used appropriately. ऑप्शन ए बी सी डी में से उसको टिक कीजिए जिसमें फ्रेज एन मास यूज की गई है ठीक से। द टीचर अप्लाइड फॉर लीव एन मास। द स्टूडेंट्स अपोज द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एन मास। द ड्राइवर लेफ्ट द व्हीकल एन मास। द पोलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड एन मास इन ए फेस्ड मैनर। सो ग्रामेटिकली ए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि टीचर सिंगुलर है। जब बहुत से लोग या बहुत से चीज़ें एक साथ मिलके काम करती है उसको एन मास बोलते हैं। टीचर तो यहाँ पे सिंगुलर है। सो ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्टूडेंट्स अपोज द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एन मास। इसे बाद में देख लेंगे। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता बिकॉज ड्राइवर भी यहाँ पर सिंगुलर है। ए पहले ही बताया नहीं हो सकता। टीचर भी एक सिंगुलर है, एन मास नहीं। द पोलिटिकल प्रिजनर्स, प्रिजनर्स तो प्लूरल है बट इन ए फेस्ड मैनर लिखा है। फेस्ड मैनर का मतलब बारी बारी, तो वो भी एन मास नहीं हो सकता। सो ए सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बच गया बी, द स्टूडेंट्स अपोज द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट एन मास। एन मास सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलकर मैनेजमेंट के डिसीजन को अपोज किया। सो बी इज द करेक्ट MCQ एंड दिस इज कॉल्ड रूल आउट टेक्निक। जब हम बारी बारी वो सारे ऑप्शन जो गलत हैं उनको छोड़ देते हैं, लास्ट में एक जो हमारा करेक्ट बचता है। जैसे हमने किया A, C एंड D इसके आंसर नहीं हो सकते। सो B इसका आंसर करेक्ट है।
This is called rule out technique in MCQ. This is very useful. Next, question number 3. What was the reason for the patronage of the mastiffs in the imperial Chinese courts? जब चाइना में सम्राट इंपीरियल होते थे, एम्परर्स, तो वो अपने कोर्ट्स में, राज दरबार में मैस्टिफ डॉग क्यों रखते थे? ऑप्शन ए, मैस्टिफ dogs were ferocious and relentless hunting dogs. सो इसका करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि मैस्टिफ डॉग बिल्कुल ही निडर और बिना रुके शिकार कर सकते थे. नेक्स्ट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. One of the following is not a symptom of high altitude sickness. इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक हाई अल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर होने वाली लक्षण नहीं है? इज नॉट ए सिम्टम, नहीं है. हाई फीवर, सीवियर हेडेक, ब्रेथलेसनेस, स्लीपनेसनेस. सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, रूल आउट मेथड, we will do the same here. So पूछा गया है is not a symptom, लक्षण नहीं है हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का. बी, सीवियर हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, ये तो सही है, हो सकता है. ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में मुश्किल, एंड स्लीपलेसनेस, सोने में मुश्किल. ये ऑल 3 तो हाई अल्टीट्यूड की सिकनेस है. पूछा गया जो सिकनेस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, हाई फीवर. हाई अल्टीट्यूड में जाके करेक्ट ऑप्शन होगा ऐसा, ये हाई फीवर होगा ऐसा नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, the salt lakes on the way to Hor are the remnants of. होर जाते समय रास्ते में जो साल्ट लेक्स, नमक की झीलें आई थी, वो किस चीज का रेमनेंट्स, अवशेष हैं? रेमनेंट्स, अवशेष. ऑप्शन इज एंशियंट टिबेटन कल्चर, नॉन स्टॉप कमर्शियल एक्टिविटीज, टिथिस ओशन दैट वंस सराउंडेड तिब्बत, टर्बुलेंट ज्योग्राफिकल. तो यही करेक्ट ऑप्शन है. साल्ट लेक, नमक की झीलें, नमक तो समुद्र के पानी में ही होता है, तो और ये उसी टिथिस ओशन का सबूत है जो कभी यहाँ पर तिब्बत जहाँ पर अभी है, वहाँ पर पहले हिमालय की जगह पर जो टिथिस नाम का महासागर होता था, ये उसी के रेमनेंट बचे हुए अवशेष हैं, साल्ट लेक्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द साल्ट लेक्स ऑन द वे टू होर आर द रिजल्ट ऑफ. ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम एज 5 ऑप्शन टिथिस, साल्ट लेक एंड टिथिस ओशन. बस ये दोनों वर्ड याद रखना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. होर वाज क्वाइट एन अनअट्रैक्टिव प्लेस इन एन अदरवाइज सीनिक हिमालयन रीजन एज. खूबसूरत दिखने वाले हिमालयन रीजन में होर बिल्कुल भी अट्रैक्ट करने वाला प्लेस, स्थान नहीं था. कारण थे इसका ए, मतलब होर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था. ए, इट वाज लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज. यहाँ पर खूब सारा वर्षों का इकट्ठा किया हुआ रिफ्यूज, कूड़े के ढेर थे. इट हैड नो बेसिक एमेनिटीज फॉर द टूरिस्ट. यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी बेसिक अमेनिटीज नहीं थी, सुख सुविधा.
It had seen no development activity despite rapid development of tourism industry. यहाँ पर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हुई थी, किसी तरह का रोड सड़कें नहीं बने थे. Locals were uneducated and could hardly read and speak English. और लोकल्स वहाँ पर पढ़े लिखे नहीं थे, इंग्लिश उनको पढ़नी और लिखनी नहीं आती थी. ऑप्शन इसमें से, वैसे तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, सारी बातें हॉर्मिथ थी, लेकिन ऑथर ने जिनको ज़्यादा जोर दे के बताया है, एम्फेसाइज्ड किया है, वो है ऑप्शन ए कि गलियों में, सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए थे. इट वॉज डर्टी प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन 7 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. What was only comfort for Nick had at Ravu? निक को, सॉरी यहाँ पे राबू वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए डार्चेन और होर. हाँ, होर वर्ड होना चाहिए यहाँ पर, रावू गलती से लिखा है होर. ऑथर निक मिडलटन के लिए होर में एक ही स्थान थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा, वो कौन सा था? हर्बल टी एट द कैफ़े, जो उसको कैफ़े में हर्बल टी पीने को मिल गई थी. ये करेक्ट ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. 9. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन द मानसरोवर? वास्तव में मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है मानसरोवर से? तो रियली में तो सतलुज रिवर ही निकलती है मानसरोवर से. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी, सतलुज. नेक्स्ट question 10. How was the experience of Nick different from that of the legendary pilgrims of the past? जो पहले के दो पिलग्रिम, एकाई कावागुची और वो जापानीज मंक और वो सब बोल के गए थे, होर के बारे में लिखा था, बहुत अच्छा. ऑथर का एक्सपीरियंस निक मिडलटन का उससे डिफरेंट कैसे था? He visited the Mansarovar at an inappropriate time. Unlike the legendary tourist, he did not have an emotional outburst at the sight of the lake. He was not enlightened by the lake. He was not religious and did not share any religious sentiments of the legendary pilgrims. So, legendary word से ये ऑप्शन डी करेक्ट है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. Just like the earlier religious persons, author did not have the religious inclinations and so he did not have any religious sentiment. Next, one of the things mentioned below about the cafe at Hor was not repelling to the author. एक चीज जो ऑथर को वहाँ पर होर वाले कैफ़े जहाँ बैठ के उसने चाय पी थी, एक नज़ारा कौन सा सही लगा था उसको? अच्छा, बस नज़ारा तो यही था. थ्रू द विंडो ही कुड सी द ब्यूटीफुल पीक्स ऑफ द माउंट कैलाश, कि वो टूटी खिड़की में से सुंदर कैलाश पर्वत, स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को देख सकता था. यही उसके लिए सुंदर नज़ारा था. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. व्हाट वाज द स्कैरिएस्ट थिंग अबाउट निक्स नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेज ऑन द नाइट ऑफ हिज विजिट टू डार्चेन?
क्वेश्चन ये है, ये जैसे ही ऑथर निक मिडलटन डार्चन में पहुंचा तो रात में नॉक्टर्नल उसको डिस्टरबेंस, कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सो ऑप्शन ए नाइटमेयर, बुरे सपने आए। बी ही वाज एफर्ड ऑफ फॉलिंग asleep फॉर एवर, वो सोने से डर रहा था। ही वॉज ट्रबल्ड एट हैविंग नोबडी टू लुक आफ्टर हिम। ही हैड फ्रीक्वेंट वोमिटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। सो इसमें ऑप्शन करेक्ट इज, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज, उसको रात में बिल्कुल भी ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज हिज नोस्ट्रिल्स वर टोटली क्लोज्ड, ही हैड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसको उसने नाइटमेयर के रूप में बताया है। तो हमारा ऑप्शन भी नाइटमेयर वाला ही करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन। नाइटमेयर वाला ही ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। What kept Nick awake all night on the first night of his visit to Darchen? वो पहले दिन डार्कनेस पहुंचने के बाद रात भर जागता क्यों रहा? सो करेक्ट ऑप्शन इज कफ एंड वोमिटिंग। उसको सांस रुक रही थी, खांसी हो रही थी, छाती रुक रही थी, सब मेडिकल प्रॉब्लम हो रही थी। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। What was increasing about the Tipton doctor at the Darchen Medical College? Interesting about the, सो टिप्टन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के लिए क्या इंटरेस्टिंग था? तो करेक्ट ऑप्शन इज, सो he had a great, he was very talkative, what was interesting? Correct option is he had a great knowledge of high altitude. उसको हाई अल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों की बहुत अच्छी नॉलेज थी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। Why did Saturn say that it did not really matter if Nick passed away? सैटर्न ड्राइवर ने ये क्यों कहा था, अगर निक मिडलटन मर भी गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी? तो आपको वो बुद्धिस्ट वाली बात रखना है, बिकॉज बुद्धिस्ट कभी भी डेथ का शोक, दुख नहीं मनाते हैं। तो यही उसने बोला था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट अकॉर्डिंग टू सैटर्न वुड बी बैड फॉर बिजनेस? लेकिन सैटर्न ने बोला था मेरे लिए क्या बुरा होगा इफ ऑथर निक मिडलटन डाइड? तो उसने बोला था हिज बिजनेस, बिजनेस के लिए बोला था उसने, डेथ ऑफ ए पिलग्रिम। क्योंकि अगर किसी पिलग्रिम की डेथ, यात्री की डेथ हो जाती है तो उनके क्लाइंट, कस्टमर बहुत कम हो जाते हैं और फिर इससे उनकी कमाई, बिजनेस कम हो जाता है। 17. Which of the following does not fit the description that life in Darchen was relaxed and unhurried? इसमें से कौन सी बात सही सही डिस्क्रिप्शन नहीं बताती है कि डार्चन का जीवन रिलैक्स्ड था और अनहरिड, किसी को कहीं भी कुछ करने की जल्दी नहीं थी? सो दिस डज नॉट फिट द बैटर टेबल इन द ओपन एयर। इससे ये नहीं पता चलता, बाकी सबसे पता चलता है कि वहाँ पर लोगों का जीवन बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज कॉमन बिटवीन द राइटर एंड द 3 टिबेटन्स, नेमली सैटर्न, डैनियल एंड लाहमो?
राइटर और 3 इसमें जो और पर्सन्स हैं तिब्बत के, जिनके नाम है सैटर्न ड्राइवर, डैनियल गाइड एंड लाहामो हिज होस्ट, उनके बारे में कॉमन क्या है? दे वर वेरी हेल्पफुल, दे हैड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, दे इंटरेक्टेड विद ईच अदर एंड दे हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सो कॉमन में तो यही होगा, दे हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। वो ऑल फोर इंक्लूडिंग ऑथर निक मिडल्टन एक दूसरे का रिस्पेक्ट, म्यूचुअल आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते से। सो विद दिस वी हैव रिवाइज्ड all the prose lessons of Hornbill MCQ. I hope this will be useful for you. With this we come to the end of this lesson. Thanks and subscribe and like the channel. Thank you for watching.